Hello and welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the organic farming. So let's begin with definition. This definition given by United States Department of Agriculture. Organic farming is a system which exclude the use of synthetic inputs such as fertilizer, pesticide, and totally rely upon crop rotation, organic waste and biological pest control. So बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम क्या करते हैं, जो सिंथेटिक फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड है, उसका यूज़ नहीं करते। तो हम रिलाई करते हैं क्रॉप रोटेशन पे, ऑर्गेनिक वेस्ट पे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र वी यूज़ इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। So these are the some component of organic farming. First one is a वर्मी कंपोस्ट। मैं आपको समझाता हूँ वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। तो जो अर्थवर्म है वो डेट्रीवर्स है, वो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम जो वो खाता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू बाहर निकलता है। उससे जो खाद बनता है उसे वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। सो उसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। अनदर वन इज अ ग्रीन लीफ मैन्योर। ये तो सबको पता है, जो ग्रीन लीफ है उसका हम यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, क्रॉप रोटेशन है, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट है। तो इन बायोलॉजिकल मैनेजमेंट बेसिकली वी यूज़ द प्लांट एंड एनिमल टू सस्टेन आवर फार्म। एनिमल हस्बेंडरी along with the organic farming, the side business as a animal husbandry farmer can do. Another one is a biofertilizer and manure. When we use the term manure, that means cow dung, cow urine, those who are derived from animal material, this is called manure. When we call as fertilizer, this is made up of in synthetic manner. सो उसकी नीड क्यों पड़ी हमें, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की नीड क्यों है? तो जो हमारा अनसस्टेनेबल कन्वेंशनल एग्रीकल्चर है वो अनसस्टेबल होने हो जा रहा है। अभी तो प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन अगले 10 साल में, 12 साल में वो बंद हो जाएगा प्रोडक्शन होना, उतना प्रोडक्शन नहीं होगा। जो लैंड है वो डिग्रेड हो चुकी है, हो जाएगी। तो इसके लिए एक आज की नीड हो गई है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के तरफ चले जाएं। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन लॉन्ग रन। एज वी ऑलरेडी सेड, जब आज हो रहा है प्रोडक्टिविटी, लेकिन अगले 10 साल में नहीं होगा उतना। पॉपुलेशन तो बढ़ेगा लेकिन जो रिसोर्सेस है वो नहीं बढ़ेंगे। यू कैन कोट द माल्थus प्रिंसिपल दैट resources increases by arithmetic mean, but population increases by geometric mean. So another one need is a healthy and nutritious food. More in synthetic fertilizer we use pesticide and fertilizer, so they affect our health. When the people go towards the organic farming, so health and nutrition also benefited from that farming. So another one need is ecotourism. This is a not new term in senses the agriculture tourism is going in India. Another one is employment opportunity. When the people go more towards the organic farming, the more opportunity is arising because of the nutrition content, because of the nature involved in that farming. So it's very opportunity for employer in organic farming. So what is the positive of organic farming? The it improve the soil health and fertility. We not add the synthetic fertilizer, so soil health and fertility is maintained day by day, so no need to use extra fertilizer. Conservation of water. Because of we use the manure, use the organic fertilizer, so the conservation of water, the evaporation of water, it's maintained by through all of the year. Conservation of water also is positive. Another was the increased nutrition content of food. More and more you use in organic content in your soil, so the production or whatever the production come from that organic farming, this is also very nutritious one. Cost effective farming, no need to buy heavy prices
for fertilizer. You can use your own cow dung, your own uh, urine, along with your dairy industry. So it's very beneficial for the farmer also uh, to go towards the organic farming. Another one is a better and original taste. So अभी ये हाल ही में चला आ रहा है कि जो ऑर्गेनिक है उसका टेस्ट ओरिजिनल है, वो बेटर है, वो न्यूट्रिशियस है, तो द पीपल ऑल्सो मोर अट्रैक्टेड टू द ऑर्गेनिक वेजिटेबल, ऑर्गेनिक फूड. सो नाउ द awareness is increasing in people. So farmer also benefited from organic farming. Another, now we discuss the issues of organic farming. The expensive product. So when इन किसी को स्टार्ट करना है ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो स्टार्ट करना बहुत एक्सपेंसिव है. लेकिन आप 2 साल 4 साल तब आप खेती कर रहे हो तो वो उसका एक्सपेंसिव कम हो जाए. लेकिन आप स्टार्टिंग में आपको बहुत सारा मनी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है. उसके प्रोडक्ट भी आज आप मार्केट में जब खरीदने जाओ कि आपको ऑर्गेनिक राइस चाहिए, ऑर्गेनिक वीट चाहिए, तो उसके प्राइस अलग होते हैं. क्योंकि हमने देखे क्योंकि न्यूट्रिशन ज़्यादा है, वो टेस्ट में अच्छा है. दिस आर द सम इश्यूज अबाउट एक्सपेंसिव अबाउट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट. अनदर वन इज द कन्फ्यूजन अबाउट सर्टिफिकेशन. क्या हो रहा है कि फार्मर ही खुद से बोल रहा है कि मैं मेरा फार्म ऑर्गेनिक है. देर इज़ नो अथॉरिटी और देर इज़ नो सर्टिफिकेट इशूड बाय एनी अथॉरिटी. सो ऐसे ही हवाबाजी में चल रहा है कि हाँ मैं ऑर्गेनिक प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो ये इशू है. नॉट प्रोडक्टिव एज कन्वेंशनल फार्मिंग. सो अभी फार्मर फर्टिलाइज़र यूज़ करता है, पेस्टिसाइड यूज़ करता है, तो वो प्रोडक्शन ज़्यादा होता है. लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में उतना प्रोडक्शन नहीं होता. ये इशू है क्योंकि बहुत सारा पॉपुलेशन है, खाना ज़्यादा चाहिए और प्रोडक्शन कम है, और लैक ऑफ अवेयरनेस है क्योंकि लोग महंगा है इसलिए खरीदते नहीं है. ये भी अवेयरनेस का इशू है. एक्सेस टू प्रॉपर मार्केट एंड ब्रांडिंग. सो अभी ऑर्गेनिक का भी माल एक ही मार्केट में बेचते हैं और जो सिंथेटिक फर्टिलाइज़र का भी वो उसी मार्केट में जा रहा है, और उस कोई लेबल नहीं है, ब्रांडिंग नहीं है, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोडक्ट प्रोड्यूस है, और ऐसा भी इशू चल रहा है. इनएडिक्वेट सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. सो जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए वो ही नहीं है. और हाई इनपुट कॉस्ट. तो जो इनपुट और आउटपुट कॉस्ट का हमने पिछले लेक्चर में देखा, जो इनपुट कॉस्ट है वो बहुत हाई है. जब आप किसी नए टेक्नोलॉजी में जाओगे तो किसी एक्सेप्ट करने के लिए बहुत टाइम जाएगा. तो जो उसका प्रोडक्शन करने के लिए आपको जो रिसोर्सेज चाहिए उसके लिए आपको मनी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा. नाउ सॉल्यूशन क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का. तो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड हमको मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो विदेशों में माल जाता है वो वापस आता है क्योंकि सर्टिफिकेशन नहीं है. वो बोल रहे हैं आपने वो साइंटिफिक मेथड में हम चेक नहीं कर रहे. तो जब हम वो रेगुलेट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फार्मर को उसका फ़ायदा मिलेगा. और परंपरागत कृषि विकास योजना प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, जो हमारे पीढ़ियों से आ रही है खेती, वही उसको ही हमने जब हम प्रॉपर उसका योजना करेंगे तो वो वही हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बहुत अच्छा हो सकता है. हमें कोल्ड चेन बढ़ाना चाहिए, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए. ट्रांसपोर्ट के लिए गाँव और शहर से ज़्यादा अच्छे रोड, पक्के रोड होने चाहिए. और सिंगल नोडल एजेंसी, क्योंकि अभी सभी जगह एक ही जाते हैं. आपका कौन सा ही माल हो तो एक ही एजेंसी के पास जाना पड़ता है आपको. तो एक स्पेशल एजेंसी होनी चाहिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए. ऑर्गेनिक जो फार्मर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए. गवर्नमेंट ने अच्छे अच्छे स्कीम लेकर आनी चाहिए. सो इट्स ऑल अबाउट द ऑर्गेनिक फार्मिंग, their issues, their solution, government step on organic farming. So thank you guys.